देखिए, चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ प्रोग्राम रहता है सीएम का, और ये कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग के। 13 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में वो स्टार प्रचारक हैं और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद और जेएमएम के लिए वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 5-7 करके प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अचानक से इस तरह से अगर 2 घंटा उनको बैठा के रखा जाए, 2 घंटे में 4-5 जगह उनकी सभा हो सकती थी, और चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ है, तो इसके चलते जो दिक्कतें आई हैं तो वो किनके पास गुहार लगाएंगे? लोकसभा चुनाव के समय में उनको किस तरह से ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा, और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद 5 महीने तक लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनको जेल में रखा गया। अब इस चुनाव में अगर इस तरह से होगा तो फिर वो कैसे जनता के बीच जाएंगे, जब लाखों की भीड़ वहां उपस्थित रहती है? और ऐसे में सीएम का कार्यक्रम स्थगित होता है शाम को। आपको पता है कि 4:30 बजे के बाद फिर फ्लाइट उड़ेगी भी नहीं, तो वो फिर चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये जो परेशानी है, इसकी गुहार लगाने के लिए एकमात्र माननीय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो भी एक आदिवासी महिला है और हमारे मुख्यमंत्री भी एक लोकप्रिय युवा आदिवासी नेता है। तो वो अपने नेत्री के पास, माननीय गवर्नर के, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाए हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए इसमें, कि ऐसे समय में हम क्या करें। जी। बुद्ध धर्म, Ashok the great emperor who shunned violence after embracing Buddhism had this definition of it carved on a pillar, and I quote, "Dhamma is good." And what is Dhamma? It is having few faults and many good deeds, mercy, charity, truthfulness, and purity. Unquote. Over the centuries, it was only natural that different practitioners would find different meanings in the Buddha's discourages, and thus there arose a variety of sects. In broad classifications, today we have Theravada, Mahayana, Vajrayana traditions, with many schools and sects within each of them. Moreover, such flowers of the Buddha Dharma proceeded in many directions over different periods of history. In one wave, it was transmitted to Sri Lanka, Myanmar, Cambodia, Indonesia, and other places in Southeast India. Another wave took the words of wisdom to Tibet and Nepal, and then to China, Mongolia, Japan, Korea, Vietnam, and elsewhere. While their interpretation of the Tathagata's message differ widely, what must be noted is that there is no contradiction among them. The Buddha's first discourse at Sarnath near Varanasi remains fundamental, and layers of further and further refined understanding of it are added to it. We are extremely concerned about the present situation in Bengal. We have heard about and we have seen, we are victims of, appeasement politics, which our Chief Minister Mamata Banerjee does. But in recent few months, starting from Durga Puja, Kali Puja, previously Saraswati Puja, every day things are alarming. Hindus are not being allowed to, worship their goddess. Ma Kali, Ma Durga, and not you may say, it's happening in the villages. No, it is happening in Calcutta. In Metia Buruj, these Muslim miscreants, they came into the pandal and they, demanded that the dhaki that we play during the puja, that be stopped. The sound of the conch shouldn't be there. Because, the reason was that, their ajan was being played. There was, ajan was happening that time. So, this is happening every day. Ma Lakshmi in Diamond Harbour during Lakshmi Puja, Ma Lakshmi's face was destroyed. But the police said that it has been done by a mentally retarded child. Okay. But every day, Hindus are being attacked. And Mamata Banerjee, there is no statement from Mamata Banerjee. There is no action from Mamata Banerjee's police. So I feel that we the Hindus of
Bengal are in a very, very dire state. The Muslims and the illegal immigrants of Bangladesh, the Rohingyas are continuously entering, crossing the international border because Mamata Banerjee hasn't given, land to do the international fencing. And we are the people who are suffering. It's such a, a shame that our, founder of our party, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, had established and, this West Bengal was given for the Bengali Hindus. And today, our existence is at stake. So it's extremely unfortunate, but it is shocking. And really Hindus needs to unite. If you have to save us, काटेंगे तो बाटेंगे. तो बाटेंगे तो काटेंगे. We need to be united. That Hindus needs to realize that. और संस्कृत की बात रहे तो वर्तमान में अभी मैंने एक छठ गीत को संस्कृत में गुनगुनाया है. आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा. युग्म युग्मं फल आदित देव भवतः समक्षं घाटे प्रस्तुतम्. युग्म युग्मं फल आदित देव भवतः समक्षं घाटे प्रस्तुतम्. अहं दर्शनस्य आशां कुर्वन् जले स्थितास्मि. अहं दर्शनस्य आशां कुर्वन् जले स्थितास्मि. उदयतु हे सूर्यदेव उषाकाले अर्घस्य वेला भवत् पूजनस्य वेला भवतु. उदयतु हे सूर्यदेव उषाकाले अर्घस्य वेला भवत् पूजनस्य वेला भवतु. My tribal brothers and sisters over here ഇവിടെയുള്ള എന്റെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, who have no access to good education അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഒരു പ്രവേശനം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. because there aren't enough institutions for higher education here. കാരണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല. They should not be begging for educational institutions. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആദിവാസി സഹോദരി സഹോദരന്മാർ യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത്. They should not be worrying that their children have to walk 25 kilometers or move 25 kilometers to go to a school. ഒരു സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ 25 കിലോമീറ്റർ നടക്കുകയോ യാത്ര ചെയ്യുകയോ വേണ്ടിവരും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ സാഹചര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. They should not be worried about where they're going to get drinking water from. എവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടുക എന്ന് ആലോചിച്ച് അവർക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത്. These are their rights. These are your rights. This is the very least that governments can do to you. For you. ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളാണ്. ഒരു ഗവൺമെന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. And yet you are facing this situation. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സാഹചര്യം നേരിടുകയാണ്. Where Wayanad has so much potential. വയനാടിന് അപാരമായ സാധ്യതകളും കഴിവുമാണുള്ളത്. Look at the crops you grow. നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകളൊന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. Tea, coffee, spices, banana, areca. തേയിലയുണ്ട്, കാപ്പിയുണ്ട്, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട്, വാഴ കൃഷി നടത്തുന്നു, അതുപോലെ അടയ്ക്ക കൃഷി നടത്തുന്നു. And farmers are suffering. എന്നിട്ടും ഇവിടുത്തെ കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. They are unable to repay the loans they take. അവരെടുത്ത കടങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. They have to take loans because they have no support. അവർക്കൊരു പിന്തുണയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ടി വരികയാണ്, വായ്പ എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. When the rains come or the floods come, your crops are washed away. You don't get compensation from the government. മഴ വരുമ്പോ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വിളനാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്നില്ല. You saw in the landslides a few months ago what happened. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നടന്ന മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു. My brother and I have traveled across the country. We have been to many places where huge tragedies have happened.
വലിയ ദുരന്തങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഞാനും എന്റെ സഹോദരനും ഒരുമിച്ച് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. But I remember that day when we came here, we were both going back, we were both very quiet. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, അന്ന് ഈ ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്നു. തിരിച്ചുപോയ സമയത്ത്, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിശബ്ദരായിരിക്കുകയായിരുന്നു. Because we met children who had lost their entire families. കാരണം മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് തിരിച്ചുപോയത്. A 16-year-old boy who had clung on to his mother for hours trying to save her from the waters and then had to let her go because he couldn't hold her any longer. സ്വന്തം അമ്മയെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്, ആ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയെ മണിക്കൂറുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവസാനം അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാതെ വിട്ട് കളയേണ്ടി വന്ന ഒരു 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. A girl the age of my own daughter who had lost every single member of her family, every single one. സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മകളുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. Old ladies who had nobody to look after them. ആരും നോക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ പ്രായമായ സ്ത്രീകളെ അന്ന് അവിടെ കണ്ടു. People who had lost their entire livelihood, their homes, everything. സ്വന്തം മുഴുവൻ ജീവനോപാധികളും വീടുകളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. And yet, despite all the national leaders, the Prime Minister coming here and meeting them, listening to their problems, seeing the devastation with his own eyes, until today he has not sent the funds for their compensation. ദേശീയ നേതാക്കൾ, പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത്ര വലിയൊരു നാശം കണ്ടിട്ട് ഇന്നേ ദിവസം ഇതുവരെ അവർക്ക് വേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. So what is happening here? എന്താണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Have you thought about it? നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Something is wrong with the politics that you are seeing in our country. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് തെറ്റായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Its entire objective, the entire objective of the BJP and those who are in power today is to remain in power by any means. ബിജെപിയുടെയും ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെയും മുഴുവൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു വിധേനയും അധികാരത്തിൽ തുടരുക എന്നത് മാത്രമാണ്. They see you as tools, not as people. അവര് നിങ്ങളെ, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കാണുന്നത് ഉപകരണങ്ങളായിട്ടാണ്, ജനങ്ങളായിട്ടല്ല. How can they spread anger? How can they spread fear amongst you, make you fight and benefit from that? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദ്വേഷവും വിദ്വേഷവും ഭയവും പരത്തി അതിൽ നിന്ന് ഗുണമുണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? How can they sow seeds between you of mistrust so that they can benefit out of that? നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ नहीं, आपको मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं वापस लेने के लिए फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि मैं लड़ना चाहती हूँ और लड़ने वाले हूँ. कई सीनियर लीडर्स कोशिश कर रहे थे, बात आपसे हुई थी कोई बातचीत या फिर कहाँ मुद्दा? मेरे बहुत सीनियर लोगों ने मेरे से कोशिश की मिलने की, बात करने की. मैं लेकिन कल से मैं नॉट रीचेबल रही, क्योंकि जब मैं उनको मिलती थी तब मुझे कोई किसी ने अटेंड नहीं किया. तो अभी मैंने मेरा निर्णय तय है, तो फिर बार बार पार्टी का रिजाइन करने के बाद उनका सुनना मुझे ठीक नहीं लगता, और मुझे बात करके उनका मुझे अनादर नहीं करना चाहती थी. इसीलिए मैंने उनका फोन नहीं लिया, क्योंकि वो मेरे सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे आदरणीय है. उनके हाथ के नीचे मैंने काम किया है. हमारे राहुल गांधी असतील, सोनिया गांधी असतील, सब महाराष्ट्र के नेता असतील, उन्होंने मुझे बहुत काम करने का मौका दिया है. लेकिन मुझे सबको लगता है ना कि कभी ना कभी कौन से तो पोस्ट पे जाना चाहिए. 40 साल के ऊपर हो गया, अभी आप कभी मौका नहीं देते, तो कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा ना मुझे. आपको क्यों लगता है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि आप महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर होंगे, वो सामने होंगे, बीजेपी के उम्मीदवार हेमंत रासने होंगे, वो सामने होंगे, तो आप अपने आप कहाँ देखते हैं? मैं किसी को देखती नहीं हूँ. मैं मेरे को देखती हूँ, मेरे कस्बा के वोटर के तरफ मैं देखती हूँ. उनसे ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे संपर्क करना चाहती हूँ, उनसे कैसे मिल सकती हूँ, उनके क्वेश्चन, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सुनना चाहती हूँ, और उनके लिए काम करना है मुझे. इसलिए वो मेरी जनता तय करेगी कि मुझे चुन के देना है. लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा, ये आरोप ऐसा लग रहा है कि आप जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने फाइल किया है और एक तरीके से रेबल कहा जा रहा है उन्हें,
ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा देगा या अपोनेंट पार्टी को फायदा देगा, क्योंकि वोट कटेगा, वोट शेयर बटेगा, तो ये अभी तो सब मैंने वापस लिया होता तो भी लोग ऐसे ही कहते अरे कुछ तो लिया होगा इसलिए वो चुप बैठे। अभी लड़ रहे हो तो वो भी ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन 23 तारीख को समझेगा कि क्या है। आपको कोई चुनाव चिन्ह मुझे आज ही वापस लेने की 3 बजे तक था, उसके बाद मीटिंग हो गई और जो सिंबल था वो मैंने किटली ले ली। किटली गर्म करने के बाद आप भी जानते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री ने आपके इधर कौतुक किया है, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, ना सिर्फ मेरे तरफ से लेकिन हर एक महिला के तरफ से, क्योंकि महिला का सम्मान जो कोई नेता ने रखा है और बिल्कुल हमारे लिए उनकी आवाज उठाई तो वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, वो हर एक महिला के लिए, जहाँ कोई उनको माल बुला रहा है, कोई उनको ऑब्जेक्ट बुला रहा है, कोई उनको आइटम बुला रहा है, तो ये एक पुरुष प्रधान मानसिकता जो है आदरणीय प्रधानमंत्री ने देख लिया और इसलिए उन्होंने शायद कहा कि हमें एकजुट रहना है ताकि महिलाओं का सम्मान रहे। मैं महाविनाश अघाड़ी और विपक्ष को एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमें लाड़की बहना दिया, आपने क्या किया? आपकी चुप्पी और आपके सभी नेत्री इंडिया अलायंस के चुप, आपने कोई बयान तक नहीं दिया। आपकी संवेदनशीलता कहाँ है? आपकी ईमानदारी कहाँ है? और आपका जो आदर है महिलाओं के लिए, क्या वो गायब है? ये सवाल मैं विपक्ष को पूछना चाहती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। निशाना सिर्फ साथ नहीं रहे, निशाना तो कर ही सकते हैं। सवाल है उनके जो वक्तव्य है, उनका जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये सरासर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो लागू होता है और भाषण के जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सीधे तौर पर सांप्रदायिक हैं और कानून के खिलाफ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे इलेक्शन कमीशन सोए हुए हैं? क्या हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में क्या सब कुंभकर्ण घुसे हुए हैं? क्या कारण है कि जैसे प्रधानमंत्री की भाषण पूरे तौर पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी, जहां पूरे तौर पर जो भाषण वो दे रहे हैं वो उसका उल्लंघन हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन नोटिस तक नहीं दे सकते हैं। पिछली बार जब हरियाणा में इस प्रकार के भाषण दिए गए तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे नियम को तोड़कर पार्टी को उन्होंने बगैर नाम लिए हुए उन्होंने नोटिस दिया। अभी तक जो भाषण दे रहे उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन होता है, उस व्यक्ति को नोटिस दे रहे हैं। लेकिन आज ऐसे लगता है कि हमारे देश की ये हालात बन गए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर कानून से ऊपर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मर्जी कहे, जितनी सांप्रदायिक भाषण किसी कम्युनिटी को टारगेट करके कहे, कानून का खुलेआम उल्लंघन करे, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। ये बेहद गलत है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत नोटिस देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या न हो। हमारे देश के कानून, हमारे देश के संविधान हर एक के ऊपर बराबरी का एक अधिकार है और उनके ऊपर भी लागू होता है। ये तो एक सवाल है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो उनका भाषण का आधार है उसको आप देखिए। उन्होंने कहा घुसपैठियों को, इस समय जो गैर बीजेपी सरकार है जेएमएम के नेतृत्व में, वो घुसपैठियों को लगातार, मतलब उनकी माफिया को वो समर्थन कर रहे। हकीकत क्या है? झारखंड का गठन हुआ 2000 में, 2024 है। इतने सालों में सारे 16 साल खुद बीजेपी की सरकार रही। उस समय वो क्या कर रहे थे अगर ये हकीकत है? दूसरी बात, झारखंड की हाईकोर्ट में जो अभी पिटीशन है
उस पिटिशन में जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि आप बताइए इसमें आपका क्या कहना है घुसपैठियों के बारे में जो पिटिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया? हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई आंकड़े नहीं है तो प्रधानमंत्री आकर इस प्रकार की वक्तव्य कैसे रख रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? आंकड़े आपके पास है नहीं। सारे 16 साल आपकी स्वयं सरकार थी और आज वोट की बंटवारा करने के लिए, पूरे चुनाव को प्रदूषित करने के लिए आज प्रधानमंत्री खड़े हैं। प्रधानमंत्री आज कमांडर है संविधान की धज्जियां उड़ाने की उस टीम की। आज प्रधानमंत्री कमांडर है इस बात की कि कानून ताक पर रखो, हम प्रधानमंत्री हैं, जो हम मर्जी करते, जो हमारी मर्जी है हम वही बात करेंगे। तो अयोध्या से प्रभु राम की पावन धरा से ही आपके बीच में आया हूं। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है और प्रभु राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान भी हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बने, राम भक्त 500 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। लाखों की संख्या में राम भक्तों ने अपना बलिदान भी दिया। बैरियर बनने का काम कौन कर रहे थे? यही कांग्रेस, यही आरजेडी, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही लोग थे जो राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में बाधक थे। और जैसे ही देश की जनता जनार्दन ने निर्णय देकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता मोदी जी को देश की कमान सौंपी, मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों पे लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। तो
सबसे कठिन, सबसे बड़ा महापर्व जिसे बोलते हैं छठ होता है। ऐसे में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या आपके सजेशंस रहेंगे, किस तरह से इसे मनाया जाए? देखिए, हम तो बेगूसराय के बरौनी में छठ बाजार हिंदू लगाने की व्यवस्था कई साल से किया है। यही था इसकी पवित्रता को लेकर के। छठ व्रत अनुशासन का पर्व है। ये सूर्य भगवान की उपासना अनुशासन की उपासना है, और ऐसे में दूसरे धर्म के लोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई कहता थूक फेंकते, क्या करते। तो इसीलिए मैं अपील करता हूं कि जो छठ व्रत को मानते हों, जो सनातन के छठ पर्व का सम्मान करते हों, ऐसे ही लोगों के हाथ सामान खरीदना चाहिए छठ का, क्योंकि ये एक अनुशासन का व्रत है। जी सर, एक सवाल